अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते साथ शुरू है उम्मीद करता हूँ फिट होंगे बेहतरीन होगी अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी रिपब्लिक डे 2026 गूज़बम्प्स मूवमेंट एज इंडियन एयर फोर्स फ्लाई पास्ट स्टील्स द शो। और रीजनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। Well, it's a carry bar, so guys, let's start. Flying display. This flying display is an outcome of the focused training and professionalism of the air and the ground crew of the Indian Air Force. The first formation onto your television screens, Arjun Formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh, Distinguished Flying Cross. Formation comprising one C-130J Super Hercules aircraft and two C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. Leading this formation is a C-130J aircraft from the Special Operations Squadron of the Indian Air Force, led today by Group Captain Rahul Rawat. The motto of the squadron, Praharati Pratihanti, translating to strike to kill. Flanking it are two C-29 aircraft from 12th Squadron in victory formation, flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. जी हाँ, जमीनी करतबों के बाद अब बारी है हवाई करतबों की। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा वायु विचरण करते हुए जब नजर आएंगे कर्तव्य पथ के ऊपर तो आप अपनी सांसें थाम लेंगे, यकीन मानिए। सबसे पहले कुछ ही देर के बाद अर्जन फॉर्मेशन, जिसमें दो C-295 विमान और साथ में एक C-130 एयरक्राफ्ट सुपर हरक्यूलिस के नाम से जिसे जाना जाता है, अर्जन फॉर्मेशन तैयार करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेगा मार्शल ऑफ एयर फोर्स अर्जन सिंह के नाम पर, जिसका नामकरण हुआ है। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन राहुल रावत। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन विमानों ने चंडीगढ़ से उड़ान भरी है और कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हैं। The formation flying at a speed of 350 kilometers per hour, and today it has gone airborne from Air Force Station Chandigarh. C-130J is a special operation heavy lift transport aircraft of the Indian Air Force. And now you can see the first formation, Arjun Formation, led by Group Captain Rahul Rawat. Flanking it are two C-295 aircraft, flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Flying majestically up over the skies of the Kartavya Paths. And now time for the Varuna Formation, comprising one PHI aircraft of the Indian Navy and two Sukhoi 30 MKI aircraft of the Indian Air Force. Leading the formation will be Group Captain Akshay Kumar Raja with Commander Ashish Vashisht flying the PHI, and the Sukhoi 30 MKI of the Indian Air Force flown by Group Captain Jeetu Yadav with Squadron Leader Tanush Malik and Wing Commander Deepak Prasad with Squadron Leader Ram Sharma. The PHI, with its unmatched long-range maritime reconnaissance and anti-submarine prowess, and the Sukhois flanking it. The formation led by Captain Akshay Kumar Raja. And now you can see Bajrang Formation, comprising 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one can say even the wind along the Kartavya Path have stopped to stare at these Rafales. The formation being led by Group Captain Arun Kumar. Other members of the formation, Wing Commander Jaspal Singh, Squadron Leader V.B. Chengude, Squadron Leader A.K. Beniwal, Squadron Leader S. Masand and Squadron Leader Amol Garg, all from 101 Squadron known as the Falcons of the Cham. The squadron's motto, Anubhishya Bhedi, seek and destroy. Rafale, omnipotent 4++ generation fighter aircraft of the Indian Air Force.
जी, आपसे कुछ ही क्षणों के बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से नजर आएंगे वज्रांग फॉर्मेशन में 6 रफेल विमान। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार। वायु योद्धा गर्व और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। Vajrang, led by Group Captain Arun Kumar. Marvel the choreography of power and precision, each aircraft symbolic of the guardianship that keeps our skies sovereign and secure. And time now for a single Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the vertical maneuver over Kartavya Paths. The aircraft is being flown by Group Captain Amit Gehani along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron, known as the Golden Arrows. Their motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywards. विजय फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के ऊपर से एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी। जोधपुर से उड़ान भरी है। The aircraft doing series of rolls, going up, and finally would disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam. Vijay stands as a salute to the spirit of India, resolute and rising. उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, उल्लसित है, रोमांचित है वायु योद्धाओं के इस वायु विचरण। जी विमानों के जो है वो जानकार जो हैं वो हमारे अच्छा, हर चीज का एक्सपर्ट मैं ही हूँ इधर। तोपू का मुंह मेरी तरफ ही होता है। तो बहरहाल जी कल भी हमने एक वीडियो की थी डब्ल्यू की, जो कि दिखा रहे थे, झांकियां दिखा रहे थे सारी, वो वाली हमने वीडियो की थी। और आज जो है वो एक और वीडियो लेके आए हैं रिपब्लिक डे के रिलेटेड। और आप सबको जो है वो कल रिपब्लिक डे था, और लेकिन फिर भी जो है वो शुभकामनाएं आप सबको हमारी तरफ से। बिल्कुल। और अभी जो देखा हमने फिल वक्त जो है वो अपना जहाज़ जो हैं उनके उड़ान जो है वो दिखाई गई है, जिसमें स्कोई 30 भी थे, उसके बाद रफ़ाइल भी थे, और दूसरे जो C-130 अपना बिल्कुल वो C-130 और C-2 मेरे ख्याल में वो भी थे, तो वो भी दिखाए गए हैं। और लेकिन जो एंड पे रफ़ाइल ने जो है वो स्टंट किए हैं, जो वो उन्होंने घुमाया है हवा में, यकीन करें देख के बड़ा अच्छा लगा है। और वही देख रहे थे कि कोई जो है वो इस तरह का नहीं हो रहा कि ऊपर जाएं या हवा में घूमें, कोई इस तरह का स्टंट करें। तो वो पहले जो दिखाए गए थे वो सारे सीधे जा रहे थे, तरतीब में सीधे जा रहे थे। ये कोई आसान काम नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम होता है। ज़ाहिर है पायलट जो हैं वो एक ही तरतीब में, एक ही जो है वो रिदम में जो है वो रखना है इनको, और एक ही जहाज़ के पीछे लगाए रखना तरतीब के साथ। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि वो करते हैं भाई, और उन्होंने किया। लेकिन एंड पे राफेल ने जो है वो अपना स्टंट भी दिखाए, तो वो भी बड़ा अच्छा लगा। एक मोमेंट जो है वो वाकई मज़े वाला था। जैसे ही वो गया तो मोदी साहब भी जो है वो भी मुस्कुरा रहे थे, तो वाकई मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। हम खुद जो है वो देख के जो है हमें भी अच्छा लगा वो जो एंड पे था। तो पहले जो है वो इस तरह लग रहा था जैसे कि जहाज जो है वो स्टिल हवा में जो है वो खड़े हैं, चल नहीं रहे। हमने कैमरा फ्रेम तो वो भी बिल्कुल वो है, लगता है ऐसे ही है कि जैसे वो स्टिल खड़े हैं उधर, और लेकिन वो चल रहे थे। तो खैर स्पीड जो है वो वैसे भी स्लो ही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो उड़ रहे थे, सॉरी चल रहे थे कह रहा हूँ, उड़ रहे थे। नहीं उड़ रहे थे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं सीरियसली। हाँ, कभी कभी हम भी उड़े हुए होते हैं ना, उड़ान जो है वो भर रहे थे। हो जाता है, लेकिन ये है कि मोमेंट बहुत अच्छा था यार इसमें। नहीं वैसे हम यही कहते हैं कि चल रहे थे वैसे, लेकिन जो वर्ड है वो उड़ नहीं गया असल।
एकदम से मेरे देर में आ गया। खैर एनीवेज स्टंट देखकर वाकई मजा आया और नो डाउट जी लोग सलूट करते हैं, लोगों को पता है कि कितनी स्ट्रगल है इसके पीछे। और मैं देख रहा था कि चलें बड़े जेट जो हैं उनके लिए जब पायलट को सिलेक्ट किया जाता है या छोटे जेट कौन से हिस्से में आते हैं उनको स्टेज के ऊपर खड़ा किया जाता है। अमेरिकन वीडियो देखी थी मैंने, आई थिंक इंडिया में भी वैसे ही होता होगा, उनको बताया जाता होगा। पीछे स्क्रीन के ऊपर ना विजुअल चल रहे होते हैं और पायलट सामने खड़ा होता है और इस तरह कर रहा होता है कि रिजल्ट आना है, अब मेरे हिस्से में कौन सा जहाज आएगा। उसकी मेहनत उसकी स्ट्रगल बता रही होती है कि अब उसको कौन से पॉइंट मिले हैं, किस जगह पे वो नाकाम रहा है, किस जगह पे ये कामयाब लकी हुआ है। बीस्ट में भी जो है वो उन्होंने भी बताया था ना, हाँ, उसमें भी जो मैंने हम मैच पॉडकास्ट जो है वो हमने देखी थी, तो बिल्कुल उस आरजे उन्होंने रोना की बताया था। बिल्कुल। तो ये वही चीज अब यहाँ पे वो सिलेक्ट होते हैं, फिर उन्हें वो जो सेलिब्रेशन करते हैं कि हाँ मेरे हिस्से में ये जेट आया है। और दुनिया का कह लें कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस जो है वो एयरक्राफ्ट आपके हिस्से में आना, भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट भी होगा कि देश को भाई आपने रिप्रेजेंट करना है, आपने सर्व करना है। लेकिन सर्व करने के लिए आपके पास जो मशीन आपके हिस्से में आई है वो आपको लगेगा कि आपके कैलिबर से भी ऊपर है, क्योंकि भाई उसमें वो टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ करना प्रॉपर वे में 110%। एक नई चीज़ लेते हैं तो उसको यूज़ करते हुए एक टाइम लगता है, ठीक है, और उसमें महारत हासिल करने में, ठीक है, एक्सपीरियंस लेने में। तो ये चीज़ जो है उन पायलट्स के लिए कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल स्टंट पहले दिखाए गए, लेकिन बाद में मनूवर जो किया गया, वो जो स्टंट किए गए रफाल की तरफ से, भाई जब जहाज़ ऊपर जाता है तो बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि जी फोर्स जो है उसकी पायलट को तैयारी करवाई जाती है, तब ये सारे टेस्ट होते हैं तो उनमें से निकल के आते हैं वो, ठीक है, और आप में वो एबिलिटी होती है कि उसको बर्दाश्त करना। लेकिन जब जहाज़ ऊपर जाता है और वो स्टंट करता है, पायलट जो है जहाज़ को घुमाता है, क्योंकि ये उसने करना है। जब जंग की सिचुएशन होगी, मिसाइल फायर होंगे, वो पहले उससे पहले वो इंडिकेट कर देता है कि आप टारगेट पे आ गए हैं और मिसाइल जो है फायर हो चुका है। उसके बाद जहाज़ को लेफ्ट राइट घुमाकर निकालना, वहाँ से बचाना, तो ये स्टंट उन्हीं में आते हैं। लेकिन लोगों को, हम आम आवाम को देखने में वो इंजॉयमेंट मोमेंट लगता है कि एक स्टंट हो रहा है या कुछ। वो स्टंट ओरिजिनल जंग में वो काम आने हैं उनके, वो उन्होंने रिहर्सल की होती है। लेकिन इतने नज़दीक और जहाज़ों को लेकर उड़ना, क्योंकि भाई प्रेशर होता है, ठीक है, उनके कंट्रोल में है, मशीनरी है, लेकिन बीच में चीलें जो उड़ रही थी और परिंदे थे, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऊपर से क्लाइमेट जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो क्लियर नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर जो है। हालांकि धूप निकली हुई है, सनी डे है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फीलिंग आ रही थी। और जो बड़े जहाज दिखाए गए हैं वो तो, अब जो पबजी खेलते हैं इस तरह के, ये जो हैं, ये राणा भी खेलता है, तो खेलते हो रहो ना। और जो जिससे जंप करते हैं वो वही है 130 जो है। अमेरिका के पास मेरे ख्याल में 135 है, इससे बड़ा है। तो इसमें मेरे हाल में वो पाकिस्तान में भी आते हैं वो, जिनका जिक्र हुआ था, कार्गो लेकर, और वो जो है तो वो वही जहाज़ हैं। लेकिन ये है कि भाई टेक्नोलॉजी है, हर तरह से उन्होंने जो है शो अप की है। अभी साथ में ज़मीन पे भी होता, ठीक है, ग्राउंड लेवल के ऊपर वो भी साथ चल रहा होता ना, टैंक वगैरह और वो चीज़ें जो है, तो वो भी एक अलग सामान बनना था। लेकिन उन्होंने वन बाय वन जो है वो चीज़ें जो हैं वो शो अप की हैं। और जहाँ पे राफेल का इंटरव्यू दिखाया गया, वो मेरे हाल में मैंने फर्स्ट टाइम जो है राफेल का देखा है, स्कोई का। और उससे पहले जो C-130 था उसका इंटरव्यू जो है वो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू जो है उनसे वो विजुअल जो है वो लेकर, वो क्लिप, वीडियो क्लिप लेकर दिखाए गए, वो नीचे मेंशन भी था। तो ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि भाई इतनी दूर से कैमरा कैप्चर कर रहा है प्रॉपर वे, पता नहीं चलता। लेकिन क्या लें कि ड्रोन शॉट और उनके जो शॉट्स थे वो जो है वो उनसे लिए गए और वो हम लोगों तक पहुँचे और देखने में अच्छा लगा। और बाकी वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। लेकिन मोदी सर के लिए एक डिफरेंट सिनेरियो होगा, क्योंकि भाई जो है मुल्क को संभालने वाला बंदा जो है, होल्ड करने वाला, आगे ले जाने वाला, इसमें कोई शक नहीं है। वो बंदा बैठ के वहाँ पे अपनी मेहनत का रंग देख रहा है कि भाई मैंने ये किया और मुल्क मेरा तरक्की कर रहा है, देश मेरा जो है आगे बढ़ रहा है, मैंने आवाम को सहूलत दी, आज इस पोजीशन पे है। फ़ख्र भाई वो अलग लेवल का होगा उस बंदे के जहन में। और वो जो उस बंदे की छाती चौड़ी हो रही होगी, वो मेरे ख्याल में इंडियन जितने भी होंगे वो उनको देखकर फ़ख्र कर रहे होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा मोमेंट उनके लिए था और वो भी एंजॉय कर रहे थे, किसी चीज़ के ऊपर मुस्कुरा भी रहे थे। और नो डाउट कि भाई स्टंट करने जो हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं इस तरह की सिचुएशन में, एक प्रेशर सिचुएशन होती है।
आपने उस बंदे के सामने परफॉर्म करना है जो कंट्री को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भी कम नहीं, लेकिन भाई वो 110% देना वो थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, प्रेशर सिचुएशन होती है, लेकिन हैंडल अच्छे तरीके से किया। जितने भी क्लिप अभी शॉर्ट वीडियो थी, इसमें और भी स्टंट जो है वो हुए होंगे, और ज़बरदस्त वीडियो थी, ज़बरदस्त। और रिक्वेस्ट भी आ रही थी, एक दो कमेंट्स भी आए थे, तो भाई जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया उनका भी शुक्रिया, क्योंकि आपके थ्रू हमें ये सब कुछ देखने को मिला। बिल्कुल जी, इंडियन वायुसेना जो है उसकी ये एक पावर दर्शाई गई है और उसकी ये टैलेंट है। वायुसेना जो है, जितने भी विंग कमांडर थे अपने-अपने ग्रुप के साथ पधारे हैं और अपना-अपना उन्होंने जो भी कर्तव्य उनके बनते थे, वो उन्होंने करके दिखाए हैं और बड़े अच्छे तरीके से अवाम ने भी उनको एप्रिशिएट किया है। ग्रुप बाय ग्रुप यहाँ पे विंग कमांडर आते रहे हैं और अवाम जो है वो देख देख रही थी कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनको सलामी दी जा रही है। तो ये एक एज़ अ प्राइम मिनिस्टर उनके लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट होता है कि वायुसेना जो है, वो अपनी काबिलियत दिखा रही है। उससे पहले जो है वो इंडियन कल्चर दिखाया गया है, आज वायुसेना का दिखाया गया है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में ये दर्शाया जा रहा है कि हिंदुस्तान का जो कल्चर, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, उसके साथ-साथ हिंदुस्तान की वायुसेना की पावर, उसके बाद नेवी की पावर, ये सारी चीज़ें भी दर्शाना बड़ा ज़रूरी होता है और रिपब्लिक डे है, तो इस दिन के ऊपर तो ख़ास तौर पर जो है वो जितने भी जवान हैं, उनके पास भी मौका होता है, अपनी काबिलियत दिखाने का और अपना सिक्का जो है, वो मनवाने का। तो यहाँ पे जितने भी पायलट हैं, सब काबिल-ए-तारीफ़ हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फ्लाई करवाया और बहुत अच्छे तरीके से जो विमान थे, उनको उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ था और स्लो स्पीड इसलिए रखी गई थी क्योंकि वो यहाँ पे जो है उन्होंने सलामी भी देनी थी। नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए थे सामने। तो इसलिए बड़े हिसाब से उन्होंने जो है ना वो लाइन में एक रिदम रख के तो इस तरह से चलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जितने भी ये ख़ास किस्म के पायलट होते हैं जिनकी पता नहीं कितनी सालों की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जाके तो इस तरह के वो फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं। तो ये इंडियन वायुसेना की पावर और ये इंडियन वायुसेना की जितनी भी काबिलियत है वो आज देखने के लिए मिली है। बिल्कुल जी, और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह Allah हाफ़िज़, Hafiz, पीस। peace.